जी, ये देखिए, ये आपका एक नोटिस आया हुआ है और इसी नोटिस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और बच्चों के दिमाग में भी क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ देखो, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ प्रोवाइडेड अ होलिस्टिक विजन फॉर एजुकेशन दैट सिग्नल्स अ शिफ्ट फ्रॉम rote learning towards acquiring competence and 21st century skills. The NEP 2020 emphasizes on strengthening of TET to inculcate better test material both in terms of content and pedagogy. The NEP also emphasizes on digital literacy, digital pedagogy, use of technology and its integration so as to transform the entire nation into a digital empowered society. Upholding the purpose of TET, CBSE is committed to enhancing the quality of the central teacher eligibility test in order to reflect its core purpose of attracting and filtering candidates with the aptitude and passion to enter the teaching profession. CTET should reflect the core and critical competencies to enter the teaching professions and measure these identified competencies with a fair degree of validity, reliability and fairness. Therefore, it is hereby notified within the existing syllabus of CTET and structure of the question paper. The question paper will be developed to assess less of factual knowledge and more of conceptual understanding, application, problem solving, reasoning and critical thinking. The focus will be on assessing candidates' understanding of teaching the subject, their pedagogical content knowledge, their knowledge relevance of the subject in the school curriculum and other dimensions of teaching the subject such as pedagogy, content knowledge. That includes quotient assessing, planning of teacher learning experiences, strategies for developing conceptual clarity, usage of teaching learning aids and assessment methodological specific to the concept. A detailed assessment framework with measurable competencies, sample blueprints and sample questions will be released by the CBSE to enable aspiring candidates to prepare for CTET examination. It is also notified that the next CTET examination will be conducted during December 2021 or January 2022 in online mode, which will motivate the futuristic teachers to become computer literate. It will also save huge paper wastage and account of printing of question papers and OMR sheets. Online CTET examination compliant with strict COVID protocols would ensure not only safety but would facilitate a faster processing and declaration of result. The CBSE will set up a facilitation centers in the district where the candidate will provide free of cost facility of attempting online mock test. The detailed notification regarding schedule for submission of online application for next examination of CTET and date of examination will be issued separately in due course of time. देखो, इन सब में क्या कह रहे हैं, ये सिंपली कह रहे हैं कंटेंट नॉलेज होनी चाहिए, पेडागोजिकल नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हें सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, ये सब पूछा जाएगा, टीचिंग लर्निंग एड्स के बारे में पूछा जाएगा, हर चीज़ पूछी जाएगी। साथ साथ ये टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे एम्फेसाइज करना चाहते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी टीचिंग की जो फील्ड है ना, इसमें टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। ट्रेनिंग ठीक है, 80 वाला सब्जेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें भी कम होती है। तो कहने का मतलब ये बनाया गया है, ये इसीलिए ये इतना बड़ा इन्होंने चिट्ठा बोला है कि भाई अब जो है हम टेक्नोलॉजी पे फोकस करेंगे, क्योंकि तुमने देखा है कोरोना के टाइम पे टेक्नोलॉजी ही काम आई है और अगर टेक्नोलॉजी से काम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि भाई हो सकता है सिलेबस में भी थोड़े बहुत चेंजेस हों, क्वेश्चन पेपर का भी स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है और जो सिलेबस है वो तो रहेगा ही, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी थोड़ा सा ये डेवलप करेंगे ताकि फैक्चुअल नॉलेज से ज़्यादा कंसेप्शन नॉलेज है, जो इन्होंने सब कुछ सीधा सीधा लिखा है, जो बेसिक स्किल्स होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब आपको आनी चाहिए। तो ऑनलाइन मोड ये होगा और इसके लिए कह रहे हैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह का भी ये कुछ करेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह के लिए भी। तो ध्यान रखो, ऑनलाइन टेस्ट होगा, स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, वो आ जाएगा, वैसे ही हम अपडेट कर देंगे। तो तुम लोग अपने एटलीस्ट सब्जेक्ट की नॉलेज रखो, क्योंकि जो अब की बार वाले बच्चे हैं पिछले 2019 से 2019 का पास आउट, 2020 और 2021 वाले बच्चे जो अभी अब सेकेंड ईयर में एंटर हुए हैं और उनका तो पता नहीं अब क्या होगा, और जिन्होंने अभी सेकेंड ईयर में जिनका फर्स्ट ईयर का भी रिज़ल्ट आया है, तो उन सबको ये ध्यान रखना है कि हमने अगर पढ़ाई नहीं की है, सबको पता होगा कि किसने की है या नहीं की है, तो वो ध्यान रखें कि बिना पढ़ के कुछ नहीं होगा, जो मैंने अभी अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो वो पढ़ना ज़रूरी है और मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। CTET का सारा तुम्हें मैटर, तरीका, कैसे क्वेश्चन करना है, क्योंकि हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क ज़रूरी है और स्मार्ट वर्क के लिए दिमाग लगाना ज़रूरी है। इसीलिए फॉलो करो मुझे, मेरे चैनल को फॉलो करो और कोई भी क्वेरी हो मुझसे पूछो, और जल्दी ही हम CTET की क्लासेस के साथ आएंगे जिसमें कंटेंट नॉलेज होगी,
और प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब कुछ होगा जो आपके इस CTET के अकॉर्डिंग फुलफ़िल करेगा, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ लेकर आएगा। थैंक यू सो मच। येस, हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रभा एंड यू नो हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ कर रहे हैं, डेली अपडेट करते हैं। अभी DLED के स्टूडेंट जो हैं वो प्रमोट किए गए हैं सेकेंड ईयर में, तो उनके क्वेश्चंस आ रहे थे कि अब CTET का क्या करें। एक्चुअली एक CTET का आज एक नोटिस आया है जिसमें मेंशन है कि CTET ऑनलाइन होगा, तो सभी जो लोग हैं, और दिसंबर की बात की गई है उसमें कि दिसंबर में ये होगा। तो सभी बच्चे पूछ रहे थे कैसे करें, क्या करें, और अब तो हम अप्लाई हमें कर देना चाहिए क्योंकि फर्स्ट ईयर हो गया है, सेकेंड ईयर में वैलिड होता है CTET देना। तो अपनी तैयारी शुरू करो। अपनी तैयारी शुरू करने के लिए CTET का सिलेबस निकालो। CTET के सिलेबस निकालने के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करो, क्योंकि अब ऑनलाइन होगा तो टाइम लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सब टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली नहीं होते हैं। रिटर्न में तो सब कर लेते हैं, लेकिन कोविड की वजह से जैसे ही हमारे DSSB के एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे, फिर आई थिंक नेट कराएगा और उसके बाद CTET कराएगा। तो जो पहले वाला हमारा ये पिछले वाला सेशन जुलाई वाला, और बल्कि पहले से ही जो फॉर्म फिल किए हुए हैं, और जो अभी तो खैर फॉर्म निकले ही नहीं है, रिज़ल्ट आया था रिसेंटली, तो अब दिसंबर वाले निकलेगा। और उसमें अपनी मेहनत करो, अपनी कोशिश करो। ज़्यादा हार्ड नहीं होता CTET, और जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते उनके लिए हार्ड भी होता है, और शायद इस सेशन वालों के लिए हार्ड ज़्यादा हो क्योंकि पढ़ाई नहीं की है, सीरियसली पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो बहुत लॉस है। जो बच्चे 2 साल एग्ज़ाम दिए बिना ही अब क्लियर कर चुके हैं और उन्हें CTET भी नहीं दिया उन्होंने, तो वो ध्यान रखें, क्योंकि देखो अगर तुम्हें अपने कोर्स का कुछ नहीं आएगा और आगे जाके जो भी है सारा तुम्हारे कोर्स से कनेक्टेड है, प्लस में अगर इंटरव्यू वगैरह के लिए जाओगे उसमें सब कुछ तुमसे पूछा जाएगा, और ये भी पता होगा उनको कि कोविड के बच्चे इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो स्ट्रिक्टनेस अपने आप आ जाएगी। इसलिए नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और CTET बिना पढ़े तो देखो पास होगा नहीं किसी भी कीमत पे, तो पढ़ना थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, गो थ्रू तो होना पड़ेगा हर चीज़ से। मैं कह रही हूँ ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन बिना पढ़े भी पास नहीं हुआ जाएगा। तो इसीलिए अपनी मेहनत करो, सिलेबस निकालो। और मैं खुद क्लासेस लेकर आने वाली हूँ CTET के लिए, तो इंटरेस्टेड हो तो मेरे से कांटेक्ट करो कि कैसे कैसे हमें करना है, मैं तुम्हें गाइड करूँगी। साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई ग्रेजुएशन करना चाहता है, कोई अपना फ्यूचर साइकोलॉजी में बनाना चाहता है, तो मुझसे कांटेक्ट करो। सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, या BEd के सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, BEd, DLED और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सबसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क टू मी। एंड ग्रेजुएशन में अब जो भी तुम करना चाहोगे उसको देखते हुए करना कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब भी लेनी है, तो उसको देखते हुए सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करने हैं। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के कमेंट में कर देना, आई विल आंसर। थैंक्स अ लॉट।